Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to understand the meaning of depreciation. सर क्लास 11th में पढ़ा था, वही पुराना depreciation फिर से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, प्रोविजन बनाना पड़ेगा. मैंने कहा नहीं. This is depreciation in economics. You only have to know the concept of depreciation and why there is reduction of value in the machinery with due course of time. What the losses a machinery face, that losses type, that much only. Not more than that at this level. So depreciation means, basic definition is, it refers to reduction or loss in the value of an assets over a period of time. An assets means fixed asset due to normal wear and tear. Okay. Now in economics we focus why there is a reduction of value, why there is a loss of value in the machine. So there are certain reasons. The first reason is normal wear and tear. This loss occurs due to the usage. The usage creates these wear and tear, because as you have purchased a machine, when you start to use it, it will automatically start to give some wear and tear. I'll give you a small example. Likewise, you have purchased a bike and you are having a new bike and you're standing in front of the showroom, and when you come out, that bike, when you use it on day-to-day basis, some small wear and tears will be there. Like there will be scratches, okay, there will be greasing oiling problem, there will be light bulb problem. So these are small wear and tear which comes with due course of usage. So this is first normal wear and tear which leads to loss in the value of a bike or a machine when we talk in terms of production. Second is accidental damage. अब मान लीजिए आपने वही बाइक निकाली नई नई और आप रोड पे आए और रोड पे आते ही आपका एक्सीडेंट हो गया, तो बाइक तो आपकी सुहा हो गई, आप बच गए, लेकिन बाइक आपकी चली गई. सो दिस बाइक विच गॉट एक्सीडेंटल डैमेज and it is uncertain, and that can happen to anyone. Like for example, you have purchased a machine as a producer and you are going to use it. Due to the high voltage or something, there is totally shutdown of the machine. So this is a accidental damage. Okay, तो शॉर्ट सर्किट होना, ये हो जाना, एक एक्सीडेंट हो जाना. ठीक है. और थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलीट. और सर ऑब्सोलीट वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट सिंपली मीन्स अ थिंग विच बिकम आउटडेटेड, यानी पुराना हो जाना. ठीक, यानी अब यूज ना होना, टाइम बाउंड है. ठीक, कि वक्त के साथ चीज आउटडेट हो गई. कहते नहीं ये टेक्नोलॉजी तो आउटडेटेड हो गई. जैसे BS4 टेक्नोलॉजी बाइक्स में आती थी, अब BS4 टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, तो वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी कहलाने लगी. दैट BS4 हैज बिकम ऑब्सोलीट. नाउ द न्यू टेक्नोलॉजी हैज केम, एडवांस वन, दैट इज BS6 इंजन बाइक. ओके, likewise in car. So machines are also getting obsolete day by day. So this point is very important. Questions may be asked in the board exam. See, obsolescence are of two types. One is expected obsolescence and other is unexpected obsolescence. We'll discuss one by one. So first is expected obsolescence, OBS. I'm writing in short form. Expected obsolescence मतलब ऐसा ऑब्सोलेंस जिसको आपको पता है कि ये होना ही होना है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. ठीक है. ओके, तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में ऑब्सोलेंस होना ही होना है, और ये फ्यूचर में जैसे जैसे मशीन की टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाएगी, ये ऑब्सोलेंस आके रहेगा. ठीक, अब ये ऑब्सोलेंस जो है वो बेसिकली दो वजहों की वजह से आता है. देयर आर टू रीजंस. एक होता है फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस, और दूसरा होता है बी डिमांड ऑब्सोलेंस. विल अंडरस्टैंड इज वन बाय वन. जी, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस होने का मतलब ये है, आपको मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं. आज से 50 साल पहले, 50 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, 20 साल पहले, 30 साल पहले रेलवे के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, वहाँ पे स्टीम इंजन्स यूज़ होते थे. लेकिन जैसे ही डीजल इंजन्स का इंट्रोडक्शन हुआ, स्टीम इंजन जो टेक्नोलॉजी थी, स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी, वो दिन ब दिन ऑब्सोलीट होती गई इन फ्रंट ऑफ डीजल इंजन्स. ठीक, इसी तरीके से जैसे ही डीजल इंजन के सामने इलेक्ट्रिक इंजन आए, तो डीजल इंजन की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन ऑब्सोलीट होती गई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंजन. So this is called a technological obsolescence, and every machine is going to face this obsolescence, that is technology, because technology which is in the morning will be changed. It is
too much unpredictable, dynamic, that it will be changed till evening. So this is the technological effect. The technology never stays the same. Okay, so technology obsolescence, steam engine वाला example, steam engine, it becomes obsolete in front of diesel in front of electric. आई होप यू गॉट दिस. इसी तरीके से आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ. ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा था, एक जमाना था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज होता था. आज क्या है, कलर टीवी का जमाना है. ठीक, इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल टेक्नोलॉजी वाइज ऑप्शंस ले सकते हैं. पहले सीआरटी स्क्रीन मॉनिटर्स आते थे टीवी के, बड़े बड़े डिब्बे वाले मॉनिटर्स. आज डिब्बे वाले टीवी खत्म हो गए हैं और सारे के सारे टीवी जो है फ्लैट स्क्रीन, एलसीडी, एलईडीज, ये सारों ने रिप्लेस कर दिया है. ठीक, तो दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी obsolescence. Okay, second we will talk about the demand obsolescence. See, demand obsolescence means, I'll give you an example. जैसे मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड चेंज हुई, तो अगर उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है तो उसके साथ साथ उस चीज को बनाने वाली मशीन की भी डिमांड चेंज होती जाती है. सर कैसे चेंज हो जाती है? वो बनाने वाली मशीन भी ऑब्सोलीट हो जाती है. सर कैसे? एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जैसे पहले मशीन्स जो आती थी उनसे रबर शूज का प्रोडक्शन होता था. ठीक, जो भी प्लांट लगता था उससे रबर शूज बनते थे. अब जैसे मार्केट में रबर शूज की डिमांड खत्म होके आज के टाइम में ज्यादातर लोग लेदर शूज प्रेफर करने लगे, तो रबर शूज की डिमांड मार्केट में खत्म हो गई. तो डिमांड खत्म हुई मार्केट में रबर शूज की, लेकिन रबर शूज प्रोड्यूस करने वाली मशीन की भी टेक्नोलॉजी या मशीन की भी डिमांड पे ऑब्सोलीट हो गई. यानी वो मशीन अब ऑब्सोलीट हो गई, उस मशीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक, तो डिमांड चेंज हुई रबर शूज की बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ लेदर शूज, लेकिन जो मशीन थी रबर शूज को बनाने वाली, वो वक्त के साथ ड्यू टू द चेंज इन डिमांड फ्रॉम रबर शूज टू लेदर शूज, दैट मशीन्स बिकम ऑब्सोलीट. ओके, एक और मैं एग्जांपल देता हूं. जैसे पहले जो है ज्यादातर लोग, जो डिमांड थी वो टेरिकॉट कपड़े की ज्यादा थी. ठीक, आज जो है वो डिमांड ज्यादा किसकी है? कॉटन कपड़े की. तो जो टेरिकॉट बनाने वाली मशीन्स थी उनको आज कॉटन बनाने वाली मशीन ने ऑब्सोलीट कर दिया. सिंपल. तो अगर किसी चीज की डिमांड में, किसी गुड की डिमांड में चेंज आता है तो उसको बनाने वाली मशीन की भी डिमांड में चेंज आ जाता है. ओके, तो डिमांड ऑब्सोलेंस में आप लिख सकते हैं ड्यू टू चेंज इन फैशन the demand of a commodity changes. अब क्योंकि डिमांड कमोडिटी की चेंज हुई तो इसीलिए इसे डिमांड ऑब्सोलेंस कहा गया. लेकिन कमोडिटी की डिमांड की चेंज होने की वजह से जिस मशीन से ये कमोडिटी बनती थी उस मशीन की भी डिमांड चेंज हो गई. तो इसका मतलब द मशीनरी which produces that commodity also becomes obsolete. I hope you got this point. So we have studied in this video the basic definition of depreciation. Then we have studied the loss of value is because of the three major reasons. First is normal wear and tear, जो कि यूसेज की वजह से होता है, जैसे जैसे आप चीज़ को यूज़ करते हैं. दूसरा एक्सीडेंटल डैमेज, जो कि अनसर्टेन है. तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, वो ऑब्सोलेंस होता है. ऑब्सोलेंस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट वर्ड का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ या कोई भी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए. ठीक, अब ऑब्सोलेंस दो तरीके होता है. एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर आप टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस के बारे में पढ़ते हैं और डिमांड ऑब्सोलेंस के बारे में पढ़ते हैं. टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस जैसे मैंने आपको बताया, जिसके बारे में कि जैसे जैसे जो है वक्त बीतता है टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है और पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट होती जाती है. डिमांड ऑब्सोलेंस मतलब जब किसी कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है ड्यू टू द फैशन, उसको बनाने वाली मशीन की भी डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है, वो मशीन जो है वो ऑब्सोलीट हो जाती है. जिसका मैंने एग्जांपल आपको रबर शूज़ वाला दिया. ठीक, तो रबर शूज़ वाला एग्जांपल अच्छा है आपके लिए. रबर शूज़ को बनाने वाली जो मशीन है वो ऑब्सोलीट हो गई when leather shoes comes into the market. Okay class, thank you.